After after doing household chores, I am doing. I I do. I study. यू स्टडी ओके। घर के काम करने के बाद आप क्या करती हैं? घर के काम करने के बाद मैं पढ़ाई करती हूँ। ओके, सो यू कैन आस्क टू तरुण और साकेत एनीवन। तरुण, आफ्टर स्टडी व्हाट डू यू डू? Sonika Didi, repeat your question. Your voice is chopping. आफ्टर स्टडी व्हाट डू यू डू? After studying, I watch television. पढ़ाई Who करने के is बाद rest? तुम क्या करते हो? पढ़ाई करने के बाद मैं टीवी देखता हूँ। Who is rest? साकेत I am भैया। rest. या Saket sir, after watching television, what do you do? After watching television, I go to my office. साकिब सर, आप टीवी देखने के बाद क्या करते हैं? मैं टीवी देखने के बाद अपने ऑफिस जाता हूँ। Anybody's rest? Yes, Yes, Saket. Okay. After going to office, what do you do? After going to office, I check my mail. ऑफिस जाने के बाद आप क्या करती हैं? ऑफिस जाने के बाद मैं मेल चेक करती हूँ। Who is left? Soumya? yes, I'm rest. Yeah. After checking mail, what do you do? After checking my mail, I do my work. I do my office work. Okay. मेल चेक करने के बाद आप क्या करती हैं? मेल चेक करने के बाद मैं अपने ऑफिस का वर्क करती हूँ। Okay. Who's यू कैन rest? या यू कैन आस्क मी। Okay. After office work, what do you do? Okay, after doing office work, I have my lunch. ऑफिस वर्क के बाद आप क्या करती हैं? ऑफिस वर्क के बाद मैं लंच लेती हूँ। ओके, सोनिका, आफ्टर हैविंग लंच, व्हाट डू यू डू? आफ्टर हैविंग लंच आई वॉक इन टेरेस। खाना खाने दोपहर का खाना खाने के बाद आप क्या करती हैं? दोपहर का खाना खाने के बाद मैं टेरेस पर टहलती हूँ। ओके, तरुण, आफ्टर आफ्टर वॉकिंग इन टेरेस व्हाट डू यू डू? After I I do my rest work in office. टेरेस पर टहलने के बाद तुम क्या करते हो? मैं टेरेस के टेरेस में टहलने के बाद ऑफिस का बचा हुआ काम करता हूँ। Tarun, साकिब your सर, English question was wrong. Please come again your English answer. I
work my Good afternoon, guys. Good afternoon, sir. Sir. Okay, Tarun was answering. Tarun, you can answer later. Tarun, तुम बाद में उत्तर दे सकते हो. Shweta, what was the last interactive sentence? Am I audible, guys? Yes, sir. You are Yes, audible. sir. And is Shweta present? Sir, should I answer? Okay, Renu, what was the last interactive sentence? Sir, the last interactive sentence was here you are. ये लीजिए. Thank you. Please ask the same question to somebody else. Saket, what was the last interactive sentence? The last interactive sentence was here you are. लास्ट बोलचाल का वाक्य कौन सा था? आखिरी बोलचाल का वाक्य here you are था. Okay. Sonika, what was the last interactive sentence? The last interactive sentence is here you are. Sorry. The last interactive sentence is here you are. Saket, ask somebody else. She did not listen carefully. She was sleeping. Just a minute. Sonika, give 3D, please. It is hard nut to crack. ये लोहे के चने चबाने जैसा है. History repeats itself. इतिहास अपने आप को खुद दोहराता है. Work is worship. कर्म ही पूजा है. Renuka ji, what was the last interactive sentence? You are mute. You are The asking last, to win. the last interactive sentence was here you are. रेणुका जी, आखिरी बोलचाल का वाक्य कौन सा था? Saket, give 3D. Renuka, wait. इन्होंने बुरा अनुवाद किया. It was a bad translation. प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान. Think of the dog and the dog is there. Think of the dog. Think of the devil and devil is there. 6D. शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर. Your days are numbered. आपके दिन पूरे हुए. The clock is ticking. समय बीतता जा रहा है. Barking dogs seldom bite. जो गरजते हैं वो बरसते नहीं. I am okay with it. मुझे इससे कोई एतराज नहीं. Okay, thank you, Saket. Now ask again. Firstly, repeat the answer. I'm asking you, what was the last interactive sentence? The last interactive sentence was here you are. पिछला interactive sentence कौन सा था? पिछला interactive sentence here you are था. रेणुका जी, what was the last interactive sentence? The last interactive sentence was here you are. रेणुका जी, पिछला बोलचाल का वाक्य कौन सा था? पिछला बोलचाल का वाक्य था here you are. Who's rest? I'm rest. So many guys are rest. Yeah. Soumya, what was the last
interactive sentence. The last interactive sentence was here you are. Okay. पिछला बोल चाल बोल चाल का वाक्य क्या था? पिछला बोलचाल का वाक्य here you are था. Tarun, are you rest? Yes, I am rest. What was the last interactive sentence? The last interactive sentence was here you are. पिछला बोलचाल का वाक्य कौन सा था? पिछला बोलचाल का वाक्य यह लीजिए था. Who is rest? I am rest. Sonika Didi, what was the last interactive sentence? The last interactive sentence was here you are. सोनिका दीदी, पिछला बोलचाल का वाक्य कौन सा था? पिछला बोलचाल का वाक्य यह लीजिए था. Who is rest? Okay, if nobody is rest, you can ask me. Sir, what was the last interactive sentence? Beta, the last interactive sentence was here you go. सर, पिछला बोलचाल का वाक्य कौन सा था? पिछला interactive sentence here we go था. Okay. Shweta, are you connected or disconnected? Are you there? No? No problem. Renu, what was the last idiom? So the last idiom was work is worship. पिछला मुहावरा कौन सा था? रेणु का सुनिएगा हिंदी विशेषता पर. रेणु का हिंदी सुनिएगा. आई एम रिपीटिंग माय हिंदी. पिछला मुहावरा कौन सा था? पिछला मुहावरा कर्म ही पूजा है था. थैंक यू. गो अहेड. Sonika, what was the last idiom? The last idiom was work is worship. पिछला मुहावरा कौन सा था? पिछला मुहावरा कर्म ही पूजा था. Sakshi, what was the last idiom? The last idiom was work is worship. पिछला मुहावरा कौन सा था? पिछला मुहावरा वर्क इज कर्म ही पूजा है था. साकिब भैया, what was the last idiom? The last idiom was work is worship. भैया लास्ट idiom कौन सा था? पिछला idiom work is worship था. रेणुका दी, what was the last idiom? Saket, she has left due to actually here in the Nagpur it's raining cats and dogs, so some issue must be there, so she has left. Okay, who is rest? I am rest. Tarun, what was the last idiom? The last idiom was when the god keeps, no frost can kill. तरुण, पिछला idiom क्या था? पिछला मुहावरा क्या था? पिछला मुहावरा सॉरी बेटा, रुकना. वेट. साकिब भैया को 3 का दंड फिर से. इन्होंने अक्षरशः अनुवाद किया जो पिछली बार रेणुका ने किया था, लेकिन रेणुका नई है इसलिए हमने. साकिब, रिपीट योर हिंदी. तरुण, पिछला मुहावरा कौन सा था? So there you are.
साकिब सर पिछला मुहावरा जाको राके साइयां मार सके ना कोई था। साकिब अब आप 3 का दंड दीजिए बेटा। तरुण वेट, म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू। वेल बिगन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत आधी सफलता की द्योतक होती है। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। मूसलाधार बारिश हो रही है। डोंट लुक योर ग्रैंडमदर टू सक एग्स। दान दान नहीं। आपको 3 का दंड और लगा, आपने 2 मुहावरे मिला दिए। हाँ सॉरी। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। पहले इसको कथनी सही से कर लीजिए। बोलिए, डोंट डोंट टीच योर योर ग्रैंडमदर टू टू सक सक एग्स। एग्स। दान की बच्ची नहीं, ये इसका ज्यादा ज्ञान ना दो। ज्यादा ज्ञान ना दो। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। कथनी से करनी भली। ही इज टाइड अप। वह फंस गया। आफ्टर यू पहले आप। हेस्ट इज वेस्ट। जल्दी का काम शैतान का। डन सर। यस, यू आर राइट। जल्दी का काम शैतान का। एब्सोल्युटली करेक्ट। हेस्ट इज वेस्ट। ओके, इज द राउंड डन? Yes, sir. The round is done. Thank you. Let me ask, is anybody rest? Okay. No, sir, all are done. All are done. So, दोस्तों, ये मिल गया है आपको। फिर भी हम इसको आप चूंकि क्रम से लिखवा रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं इस तरह से। चलिए पूछते हैं, तरुण से पूछ लेते। तरुण, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? Sir, the Hindi meaning of that sentence is मैं जाग रहा हूँ। एब्सोल्युटली करेक्ट, मैं जाग रहा हूँ। अब क्या कोई बता सकता है कि मैं जाग रहा हूँ किस टेंस का प्रतीत हो रहा है? Sir, should I? Yes, please. Sir, it is presenting be present tense. Okay, Sakit, can you tell me, please? Sir, present continuous tense. Yes, you are right. अंत में रहा हूँ, रही है, रहे हैं जैसे अगर शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। लेकिन क्या ऊपर वाले सेंटेंस में कहीं भी आईएनजी दिखाई दे रहा है क्या किसी को? नहीं। दिस इज द मैजिक ऑफ इंटरैक्टिव सेंटेंस। वो बिल्कुल भिन्न होता है, उसका अर्थ बिल्कुल भिन्न निकलता है और ये चीजें रियल इंग्लिश में बहुत प्रचलित हैं। हमें नहीं सिखाई गई वो बात अलग है, लेकिन ये चलती हैं। आप मूवीज में सुनेंगे, लिखा हुआ भी देखेंगे। और ये वाक्य हम इस क्लास में बिल्कुल प्रारंभ में इसलिए देते हैं क्योंकि इस क्लास में सोने पर दंड है, सोने वाले को दंड है, गलती करने वाले को कतई दंड नहीं होता है। तो हम इसको इस तरह से प्रयोग करते हैं।
जब कोई सो रहा होता है, जिसकी बारी होती है, वो नहीं बोलता है, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन अभी हम प्रैक्टिस के लिए एक एक का नाम पुकार के इसका प्रयोग करेंगे, और इस बार हम हिंदी भी ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। चूंकि साकेत इस क्लास की प्रोसेस से परिचित है, तो सबसे पहले हम साकेत से ही बोल रहे हैं। साकेत, गुड Sir, he has मॉर्निंग। left for some reason. ओके, तो चलिए हम बोल देते हैं साक्षी से। साक्षी भी जानती है। साक्षी, गुड मॉर्निंग। सर आई एम अवेक। साक्षी, जागो। सर मैं जाग रही हूँ। सभी ने सुना? साक्षी म्यूट कर लीजिए, थैंक यू। तो यहाँ पे इस गुड मॉर्निंग का अर्थ वो वाली गुड मॉर्निंग से नहीं, हम किसी को जगा रहे हैं क्योंकि वो सो रहा है। तो ये इसको इस तरह से रिलेट करके देखिए, ये अभ्यास के लिए है, और हम एक एक का नाम लेके इसी तरह। और हाँ, एक चीज जो मैंने नोट की वो ये है कि साक्षी के ने किसी दूसरे के मोबाइल से ज्वाइन किया है, तो आज वो वाली हमिंग जो कल बहुत परेशान कर रही थी, वो आज कतई नहीं है, बिल्कुल साफ आवाज आ रही। गुड, ओके। अब साक्षी, तुम किसी और का नाम लेके उसको गुड मॉर्निंग बोलो। रेणुदी, गुड मॉर्निंग। Sakshi, I am awake. रेणुदी, आप जागिए। हाँ, मैं जाग रही हूँ। तरुण, गुड मॉर्निंग। I am awake. तरुण, जागो। मैं जाग रहा हूँ। सोनिका दीदी, गुड मॉर्निंग। I am awake. सोनिका दीदी, जागिए। तरुण, मैं जाग रही हूँ। Who is rest? I am rest. साकेत भैया, गुड मॉर्निंग। I am awake. साकेत भैया, जागिए। मैं जाग रहा हूँ। Who is rest? All are done, Saket. Sir, good एक बार morning. तरुण से बोल दो। Tarun, good morning. साकिब सर, I am awake. जागो तरुण। साकिब सर, मैं जाग रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों। अब हम अगला कदम रखते हैं, जिसका पिछले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है कि जब कोई इस स्थिति में आएगा, तो आप फट से गुड मॉर्निंग बोलेंगे, और जिसका नाम आप लेंगे वो जब तक आई एम अवेक ना बोले, आप गुड मॉर्निंग जरूर बोलिएगा। अब इस राउंड को समाप्त करके हम नेक्स्ट राउंड शुरू कर रहे हैं, और इसमें आपको काल्पनिक उत्तर देना है दोस्तों। यू हैव टू गिव इमेजिनरी आंसर। तो हम साकेत से शुरू करते हैं। साकेत, मेरा सवाल भी ध्यान से सुनना, और यहाँ लिखा हुआ भी आएगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। साकेत, हु इज अवेक? Sachin is awake. साकेत, कौन जाग रहा है? सचिन जाग रहा है। थैंक यू। रेणुदी, who is awake? Saket, Karishma is awake. रेणुदी, कौन जाग रहा है? करिश्मा जाग रही है। सोनिका, who is awake? आकाश इज अवेक। कौन जाग रहा है? आकाश जाग रहा है। साक्षी, हु इज अवेक? माय फ्रेंड इज अवेक। साक्षी, कौन जाग रहा है? मेरी फ्रेंड जाग रही है। तरुण, हु इज अवेक? तरुण। Tarun is left, so
some problem must be there. You can ask me or somebody else. Ranudi, who's awake? Sharmila is awake. ती कौन जाग रहा है? शर्मिला जाग रही है. Renu, please ask me. Sir, who is awake? Renu, everybody is awake. Sir, कौन जाग रहा है? हर कोई जाग रहा है. Okay. Everyone is awake. हर कोई जाग रहा है. Okay. अब हम एक और इसी का राउंड खेलते हैं. लेकिन ये सवाल पहले हम किसी से पूछेंगे. अभी रेनू इसका उत्तर नहीं देंगी और साकेत, और कोई भी इसका उत्तर देगा. जब उससे सही उत्तर नहीं आएगा तब मैं किसी और से पूछूंगा. अभी अभी तरुण ने ज्वाइन किया है. तरुण, इन्वर्टेड सेंटेंस बनाने का नियम बताओ बेटा. Tarun, knock knock. Good morning. Okay. Helping verb plus subject plus verb plus object plus extension. Very nice बेटा. हमने तुमसे नियम पूछा था, तुमने फार्मूला बताया. धन्यवाद. God bless you. Now mute. हाँ, म्यूट तो तुम बहुत जल्दी करते हो. गुड, थैंक यू. ओके, साक्षी तुम बताओ. सर, जिसमें सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को उठाकर सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं. थैंक यू वेरी मच. अब सोनिका बताए. सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को सब्जेक्ट के आगे उठाकर रख देते हैं. वेरी नाइस. अब रेनू बताए. सर, इन्वर्टेड सेंटेंस बनाने के 3 नियम है. पहला नियम यह है कि नहीं, ये आप गलत कर रहे. इसको दूर कीजिए. अच्छा हुआ ये आपने गलती की. बहुत बढ़िया हुआ दोस्तों. सुनिएगा, नियम 3 नहीं, इसको क्लियर कर लीजिए. 3 जो पॉइंट है वो ये है. पहला है इन्वर्टेड सेंटेंस किसे कहते हैं, दूसरा है इन्वर्टेड सेंटेंस की पहचान क्या है, और तीसरा है नियम. तो इन दोनों ने जो बताया वो बिल्कुल सही था. एक ही लाइन में आंसर. 1 मिनट आप रुकिएगा, हम साकेत से पूछते हैं. साकेत, प्लीज टेल मी द नियम. इन्वर्टेड सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वाले वर्ड को उठा करके सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं. रेनू, नाउ यू स्पीक. इन्वर्टेड सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वाले वाक्य को उठाकर सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं. नहीं, ये तो गलत हो गया. किसी ने सॉरी भी बोला. शी इज अवे. सब्जेक्ट वाले बाद, हाँ, सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को उठाकर सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं. थैंक यू. तरुण बेटा, आप तुम भी बता दो. सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को सब्जेक्ट के पहले उठाकर रख देते हैं तो इन्वर्टेड सेंटेंस बन जाता है. थैंक यू वेरी मच. चलिए तरुण, आप ही बताइए कि व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. सर, एम. सर, एम. वेरी गुड, थैंक यू. Saket, what is the subject of this sentence? I is the subject of this sentence. Very nice. अब तुम इसी सवाल को रेनू जी से पूरा राउंड खेलो. Renuti, what is the subject of this sentence?
Saket, I is the subject of this sentence. Is Y- okay, Hindi sir. is not required. Soumya, what is the subject of this sentence? I is the subject of this sentence. Ask to someone. Good morning, Sakshi. Sir, I am awake. Sonika, what is Oh, the you are subject? not awake. You are sleeping, man. Go ahead, please. Sonika, what is the subject of in this sentence? What is the So, subject of this sentence? I is the subject of this sentence. good morning, Sonika. I is the subject of that sentence. Good morning, Sorry. Sonika. I is the subject of Good this morning, sentence. Sonika. Good morning, Sonika. I is the Good morning, subject. Sonika. Am I audible? You are sleeping. Sir, sir told you good morning. Good morning, Sonika. I is the subject of. Good morning, Sonika. Good morning. Am I audible? Yes, you are very loudly audible. I am saying good morning, Sonika. Sir, I am awake. कितनी बुरी तरह से सो रही थी तुम। हमने गुड Sorry, sir. मॉर्निंग तब बोला जब जवाब देने के बाद तुम सोने चली गई थी। हमारे ऑफलाइन बैच में इतनी जम के ये लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं कि आदमी हिल जाता है, फिर दोबारा कभी सोता नहीं। छोटे छोटे बच्चे रहते ना, खूब जम के चिल्लाते। ये देखो पता नहीं क्या कर रही है, इतनी जोर जोर से आवाज आ रही। सोनिका दीदी पूछिए, गो अहेड। I is the subject of this sentence. बेटा पूछिए का मतलब क्या होता है? अच्छा इंग्लिश में बोलते हैं आस्क समबडी, हिंदी नहीं समझ में आया होगा। Tarun, थैंक what गॉड। is the subject of this sentence? The subject of this sentence is I. गुड मॉर्निंग तरुण। Who is rest? सो देयर यू आर। All are done. Sakshi. All are done, Tarun. नाउ तरुण व्हाट विल यू डू? Sir, all are done. अच्छा, कभी किसी ने ध्यान दिया कि पिछले कई क्लासेस में हमेशा तरुण पे आके राउंड रुक गया था। हमने भी कुछ नहीं बोला, हमने जानबूझ के नहीं बोला। ध्यान दीजिए, पिछली कई क्लासेस में देख लीजिए, जवाब देने के बाद तरुण ने सब आगे बढ़ाया ही नहीं। रिकॉर्डिंग्स हैं। तरुण, आपके चरण कहाँ हैं? Sakshi sir, what is object subject of this हाँ, sentence? good. Come again, Tarun. What is subject of this sentence? बेटा थोड़ी लिपस्टिक, यूज सम लिपस्टिक। What is subject of this sentence?
कोई तरुण को बताए कि लिप्स। तुम 3 का दंड दो साकेत, एकदम सर उत्तर शुड देने आई? के लिए तैयार हो जाते हो। वेट वेट वेट। सर उत्तर नहीं दिया है मैंने, लिपस्टिक का बताया तो बोल। अच्छा तो फिर ठीक, फिर मत दो। चलो भाई बताओ, कोई तरुण को अपने लिपस्टिक का नाम किसे दिया है? आर्टिकल लगाना है द। What is the Officer, what subject is in this sentence? Sakit sir, what is the subject of this sentence? I ये is the इसमें सही subject. प्रपोजिशन है। I is the subject of that sentence. तरुण Sir all are इसको done. इन्वर्टेड बना दो बेटा। तरुण नॉक नॉक, इसे इन्वर्टेड बना दो इस बार। Sir, am I awake? वाह, अब हम इस शब्द का अक्षर से अनुवाद लेकर आपको बताते हैं और पूरा राउंड खेलते हैं। रेणुका, एम आई अवेक? Yes, sir, you are awake. रेणुका, क्या मैं जागा हुआ हूँ? Yes, sir, आप जागे हुए हैं। थैंक यू, गो अहेड। Saket, am I awake? Yes, दी you are awake. क्या मैं जागी हुई हूँ? हाँ दी आप जागी हुई हैं। सोनिका, am I awake? Yes, भैया, you are awake. सोनिका, क्या मैं जागा हुआ हूँ? हाँ भैया, आप जागे हुए हैं। साक्षी, am I awake? Yes, Sonika, you are awake. साक्षी, क्या मैं जागी हुई हूँ? हाँ सोनिका, तुम जागी हुई हो। तरुण, I am awake. तरुण, am I awake? Sorry. वाह, 1 मिनट रुकिए रुकिए बेटा। 3 का दंड तुरंत दो साक्षी। सौम्या के नाम से प्रकट हुई है साक्षी, कंफ्यूज नहीं होना दिन। आज उसने दूसरी आईडी से ज्वाइन किया, दूसरे फोन से। 3 का दंड दो बेटा। Like draws like, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। A drop in the ocean, ऊँट के मुंह में जीरा। When the good keeps no, frost can kill. करो जाको राके साया, मार सके ना कोई। अब हम रेनू को 3 का दंड दे रहे हैं क्योंकि उनको बैच में अभी अभी इस पे विस्तृत रूप से चर्चा हुई, उसी वाक्य पे उसने बिल्कुल गलत बोला है। गुड कैसे होगा? When the good keeps। पहले तो रेनू इसको सही करें और उसके बाद 3 का दंड दें। Sir, I could not hear properly. When the goods keep. What is that? तो भी 3 का दंड। हाँ सर, tit for tat, जैसे को तैसा। It's raining cats and dogs. मूसलाधार बरसात हो रही है। Man proposes, God disposes. होए वही जो राम रचे। राम रचि राखा। राम रचे राखा। Sir, I could not hear properly what she is telling. चलिए हम Sentence. देखते हैं आपके अलावा और कौन कौन सो रहा था और कौन कौन जाग रहा था। साक्षी के वाक्य में क्या गलती हुई, कोई सुधार के बताएगा? गॉड बोलना था उसको। और बोला क्या था? Good. गुड। वाह,
Good. Sakshi. Yes, Or sir. Soumya. Tarun, am I audible? Am I awake? बेटा इतना जो अपन ने सर्कस अभी किया वो किसकी खातिर किया? Sorry, sir. हंस रही है मतलब शर्मिंदा होके हंस रही है। हाँ हो जा, लेकिन जब पूरी तरह से हंस लो तब सेंटेंस को सही कर देना, नहीं तो गॉड जो है ना। Tarun, am I awake? यस अब तुम्हें फिर से 3 का दंड बेटा। पहले तुम 3 का दंड दो, फिर उस सेंटेंस को हम सही बुलवाएंगे पूरा सोनिका के साथ। 3 का दंड फिर से दो। साक्षी और सौम्या। Don't assume air. ज़्यादा उड़ो मत. Think of the devil and the devil is there. शैतान का नाम लो. शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर. I will try my best. मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी. सोनिका बेटा इस सेंटेंस को सही बुलवाओ इसके मुंह से। When the god keeps, no frost can kill. No frost can kill. चाको चा राके साई मार सके ना कोई. तरुण इतने जम के पन्ने मत पलटाओ बेटा, और पलटा नहीं है तो म्यूट करके पलटा। अब राउंड आगे बढ़ाइए सौम्या और साक्षी जी। तरुण, am I awake? यस साक्षी दीदी, यू आर अवेक। तरुण, क्या मैं जाग रही हूँ? हाँ साक्षी दीदी, आप जाग रही हैं। साकिब सर, एम आई अवेक? Yes, Tarun, you are awake. साकिब सर, क्या मैं जाग रहा हूँ? हाँ तरुण, आप जाग रहे हो। सर सर ऑल डन। ओके, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अब हम इस प्रश्न में सब्जेक्ट बदलेंगे, तो कौन शुरू करेगा राउंड? सबको सब्जेक्ट बदलना है। प्रश्न इन्वर्टेड ही रहेगा। The question will be inverted, but you will have to Okay, change sir. the subject. Are you ready? Yes, Renu, sir. please go ahead. Am Ritu Sorry. sorry? Okay. Is Ritu awake? Yes, so there Sorry, you are. sir. Saket, is Ritu awake? Yes, Ritu is awake. क्या रितु जाग रही है? हाँ दी, रितु जाग रही है। सोनिका, is Bolu awake? Yes भैया, गोलू is awake. सोनिका, क्या भोलू जाग रहा है? हाँ भैया, गोलू जाग रहा है. तरुण, is Rahul awake? यस राहुल इज अवेक। तरुण, क्या राहुल जाग रहा है? हाँ राहुल जाग रहा है। साक्षी दीदी, इज आदित्य अवेक? Yes, Rahul is awake. सॉरी, Yes, इज is Rahul.
Is Aditya awake? Yes, Aditya is awake. साक्षी दीदी, क्या आदित्य जाग रहा है? हाँ, आदित्य जाग रहा है. Who's rest? All are done. रणदीप, मैं आपसे पूछ लेती हूँ. साक्षी, पहले तो तुम 3 का दंड दो. वो आदित्य पूछ रहा था, तुम राहुल बता रही हो? सर, वो एक्चुअली कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा ठीक से. हम बार लोग को बार. सुनाई दे रहा है. तुम 3 का दंड दे दो, हम लोग को सुनाई दे रहा है. ठीक है. प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. करत करत अभ्यास की जड़ मती होत सुजान. वन टुडे इज बेटर देन टू टुमारो. काल करे सो आज, कल आज करे सो अब. एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर. मोहब्बत और जंग में सब जायज है. Now please go ahead. सौम्य और सर. साक्षी. हाँ. जी सर. सर, इज समृद्धि अवेक? No, समृद्धि स्लीपिंग. सर, क्या समृद्धि जाग रही है? नहीं, समृद्धि सो रही है. चलिए अब इसी को आगे बढ़ाते. रेनू, इज uneducated person awake? No, sir. नो में आंसर देना है. No, sir. Uneducated persons are not awake. Sorry. Uneducated person is not awake. So there you are. क्या अशिक्षित व्यक्ति जाग रहा है? नहीं सर, अशिक्षित व्यक्ति जाग नहीं रहा है. नहीं जाग रहा है. हमने ऐसा उत्तर नहीं दिया था. अब हम साकेत से पूछते हैं, देखते हैं वो जाग रहा है कि. साकेत, इज बैकवर्ड क्लास पर्सन अवेक? No, sir. Backward class person is not awake. You are also sleeping. Sonika, is the common man awake? Yes, sir. The common man is awake. क्या आम आदमी जाग रहा है? हाँ सर, आम आदमी जाग रहा है. बट यू आर स्लीपिंग. अब हम साक्षी से पूछते हैं. हम बार बार सब्जेक्ट बदलेंगे. साक्षी, इज द सोल्जर अवेक? The soldier is not awake. तुम भी सो रही हो. तरुण से पूछते हैं. तरुण, इज द वर्कर अवेक? Yes, the worker awake. सॉरी, तुम भी सो रहे हो. अब दोस्तों, हमें एक काम करना पड़ेगा क्योंकि सब सो रहे हैं. इज एनीबडी रेस्ट जिससे मैंने ना पूछा? एवरीबडी इज स्लीपिंग. हमने जो उत्तर दिया था प्रश्न, सबसे लास्ट में हमसे साक्षी ने पूछा. साक्षी, हमने क्या उत्तर दिया था? So Soumya, समृद्धि is sleeping. ये, हाँ, चलो, गनीमत है. भारत माता की जय. कम से कम उसको उत्तर याद है. चलो, तो अब हम तुम्ही से पूछते हैं. और तुम लोग को कैसा लगा जब हमने हर बार सब्जेक्ट बदला? अगर शर्म आई हो तो कुछ अच्छे सब्जेक्ट रख के दिखाना. चलो, हम साक्षी से पूछते हैं. साक्षी, इज द लास्ट बेंचर अवेक?
कम अगेन सर, यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है तो मैं सुन नहीं। Who can answer this question? Sir, I can answer. Please, Renu. Sir, the last bencher is sleeping. अभी भी एक गलती है। Last benchers are sleeping. No. सर कहना है तरुण the last bencher is Sorry. sleepy. Sorry. Sir, can I? Yes, Sonika, please. No, the last bencher is not Oh. sleeping. Sorry. Sir, no, the last bencher are not awake. अब टेक्निकल ही प्रॉब्लम स्वीकार करते हैं। हाँ, No, the last bencher is not sleeping. सॉरी मैं। सर कहना है Yes, you can. no, the last bencher is not sleepy. Sorry. Last bencher are plural number, no? So we have to take our no. Can I try? Yes, you can try. No, the last bencher is not awake. Sorry बेटा। चलिए अब आपके पास एक ही रास्ता है, आप में से कोई हमसे पूछ ले, लेकिन कुछ अच्छा सा सब्जेक्ट लगाना यार, माँ कसम। Sir, is the common people is awake? सौरा। Is People Common is man is plural awake, number। Sir, ये तो is हमने the common बोला man था, is awake? हमने बोला था I used this subject। राइट ब्रेन यूज करो, यहाँ पे थोड़ा सा हथौड़ी लेके ठोको भाई। is the politician awake? No, he is sleeping, badly sleeping। क्या politician जाग रहे हैं? Sorry, now your Hindi is जाग wrong रहा है। according। क्या politician जाग Yes। रहा है? नहीं, वह सो रहा है, पूरी तरह से सो रहा है। नहीं, वह सो रहा है। He is sleeping. Yes, sir. Got it. Saket, are you ready? Yes, sir. I am ready. अपना फ्रेंड थोड़ा स्लो कर लेना ताकि साफ साफ सुनाई दे, मतलब बाद में। Is the lawyer awake? No, the lion is sleeping. Okay, it will do। क्या एडवोकेट जाग रहा है? एडवोकेट नहीं, एडवोकेट सो रहा है। थैंक यू। रेणु दी, is the thief awake? No, he is not awake. Sorry. No, the thief is not awake. Sorry. Change the person, asked Sonika। Sonika, is the thief awake? No, भैया, the thief is not awake. Sorry। चलो हमसे पूछ लो। Sir, is the thief awake? No, he is sleeping। सर, क्या चोर जाग रहा है? नहीं, वो सो रहा है।
Tarun, are you ready to answer? Yes, sir. Is the Chaukidar awake? Yes, he. Sora, Renu, is the Chaukidar awake? No, sir, he's sleeping. So finally चौकीदार I जाग got. रहा है. No, sir, वो सो रहा है. Okay. बाप रे, finally I got your point, sir. आज सही में सब सो रहे हैं. Sorry. Okay. क्या चौकीदार जाग रहा है? No, sir, वो सो रहा है. Good. Okay. Is the shopkeeper awake? Saket? तो Is the shopkeeper awake? No, he is sleeping. क्या वो दुकानदार जाग रहा है? नहीं दी, दुकानदार सो रहा है. Tarun, Good morning. हाँ. Tarun, is the policeman sleeping? सौरा. देखो गूगल ने SOERA सौरा की स्पेलिंग दी. Tarun, police are sleeping. Is प्रश्न are police बनाने sleeping? के लिए. Are police sleeping? बहुत अच्छा सब्जेक्ट यूज किया. सभी लोग म्यूट करके सुने. पुलिस बहुवचन सब्जेक्ट है, बहुवचन. सुनने में अजीब लग रहा होगा लेकिन सही है. पुलिसमैन सिंगुलर होगा कि वो भी. अब कंफ्यूज मत करो यार. पूछ लिया है, सही है, तारीफ कर दी, आगे बढ़ो. नहीं, पहले मैंने पुलिसमैन ही बोला था इसलिए. तो आर फिर पुलिस. सॉरी. नहीं, पहले वाला तो सॉरी हो ही चुका था ना, इसलिए उसी को तो सुधारा था. हे प्रभु, तरुण, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे. तरुण, आर पुलिस स्लीपिंग? Yes, the यस. police. वाह. तरुण, तुम तो सो जाओ बेटा और चद्दर ओढ़ लो. जबलपुर में चद्दर बोलते हैं ये लोग. चद्दर ओढ़ के सो जाओ. इसका उत्तर आसान नहीं होगा. रेनू, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. Sir, they are sleeping. यस. लेकिन स्टार्टिंग में फिर हम सॉरी बोल देंगे. सॉरी. Yes, they are sleeping. No, sorry. Sir, Sonika, come again, Saket. रेनू दी, आर पुलिस स्लीपिंग? Yes, इसने they तो are पूरे sleeping. ही बदल दिया. हाँ. अवेक पे चल रहा था अपना अवेक चल राउंड. रहा था. हाँ. आर पुलिस अवेक? No, they are sleeping. रेनू दी, क्या पुलिस जाग रही है? नहीं, वे तो सो रहे हैं. Okay, Tarun, is washerman awake? Tarun? No, Tarun will he. not answer. No, he is sleeping. क्या धोबी जाग रहा है? नहीं, धोबी सो रहा है. दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक्चुअली हम चाह रहे थे कि हमने कहीं से सुना था, विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ था कि रेनू ने रात में 2 बजे 2:30 बजे तक जाग के बहुत सारे सब्जेक्ट निकाले हैं जो कल राउंड हम खेल रहे थे.
तो आज हम चाह रहे थे उस पर आते, लेकिन यहाँ पे ऐसी कैसे फंसी है माँ कसम कि यहाँ से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। तो रेणु, आपने जो हार्ड वर्क किया है उसका हम सदुपयोग आपको बताते हैं। आप उन सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन बना बना के जब फ्री हो व्हाट्सएप में धीरे धीरे डालते जाइए। मैंने वो सारे वैसे डाल दिए हैं व्हाट्सएप में विदाउट क्वेश्चन की, हम लोग सभी पढ़ सकें। ओके ओके ओके, हाँ, थैंक यू। बट सर मैं क्वेश्चन से भी बना लेंगे तो सब आंसर कर सकेंगे उसका। हाँ, और अगर ऐसा आपने कर दिया है तो फिर हम बाकी सबसे भी अनुरोध करेंगे कि उसमें से एक एक निकाल के क्वेश्चन बनाते जाएं और जिसको आंसर देना होगा वो देते रहे। यस सर, है ना, ऐसा कर लेते हैं। सर मैंने 2-2:30 बजे तक ये नहीं सर, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में स्पीच लिखी सर, कल सेकंड स्पीच लिख ली, सो वो किया सर। वो तो हमारा फाइनल विश्वास तो सूत्र उतना विश्वस्त नहीं है, चलिए हम उससे बात करेंगे। ओके दोस्तों, हम सब कुछ रोक के एक चीज पूछ लेते हैं, अधूरा छूट जाएगा नहीं तो। रेनू, व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर बोलना? सर द वर्ब फॉर बोलना शुड बी स्पीक। थैंक यू। साकित, व्हाट शुड बी द स्पेलिंग ऑफ स्पीक? The spelling of speak should be SPEAK. Thank you. Tarun, what should be the second form of speak? The second form of speech should be spoke. Okay, thank you. Sunika, what should be the spelling of spoke? The spelling of spoke should be SPOKE. Thank you. Who is rest? क्योंकि हमें यहाँ दिख नहीं रहा। चलिए, कोई नहीं बोल रहा है, मतलब इतने ही लोग हैं, तो हम रेनू से पूछ लेते हैं। रेनू, व्हाट शुड बी द थर्ड फॉर्म ऑफ स्पीक? सर द थर्ड फॉर्म ऑफ स्पीक शुड बी स्पोकन। थैंक यू। साकित, व्हाट शुड बी द स्पेलिंग ऑफ स्पोकन? ओके, साकेत तो यहाँ दिख तो रहा है, म्यूट करके बैठा है, हो सकता है आपका दे रहा। The spelling of spoken should be SPOKEN. चलो, तुम अनम्यूट हो तो इस टुडेज इडियम बोल दो और फिर नाम ले लो किसी और का। The idiom is you have spoken out of my mouth. आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। रेनू दी। You have spoken out of my mouth. आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। You have spoken out of my mouth. आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। सोनिका दी। You have spoken out of my mouth. आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। Sir, all are done. थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। गॉड ब्लेस यू।